हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चा लोगों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स आर गोइंग टू स्टार्ट. It is very important from your examination point of view. So let us start chemical kinetics. Chemical kinetics. In case of the chemical kinetics, the word in case of the chemical kinetics, the word kinetics is derived from a Greek word. It is derived from a Greek word, that is kinesis, meaning movement. तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो वर्ड काइनेटिक है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और उस ग्रीक वर्ड का नाम है काइनेसिस, और काइनेसिस का मीनिंग होता है मूवमेंट. You know, in case during a chemical reaction, the molecule of reactant are colliding, are moving, and then produce the product. So let us define the chemical kinetics. A branch of chemistry which deals with the study of reaction rate and their mechanism, and also the factors affecting the rate of reaction. Like temperature, condition of reactants, catalyst, etc. So once again I am going repeating chemical kinetics. In case of the chemical kinetics word is derived from a Greek word, that is kinesis, meaning movement. So during a chemical reaction, the molecules of the reactant are moving, then colliding, then produce product. Now let us define the chemical kinetics. A branch of the chemistry which deals with the study of reaction rate and their mechanism, and also the factor affecting the rate of reaction like temperature, condition of reactants, catalyst, etc. तो ये होगा बेटे केमिकल काइनेटिक्स. ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज बिलो. किस रिएक्शन का कितना रेट है उसके आधार पर जो केमिकल रिएक्शन है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो कौन सी है पहली रिएक्शन बेटे? फर्स्ट रिएक्शन इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. Instantaneous reaction. Instantaneous reaction.
A reaction which complete in very short interval of time, in very short interval of time, like moments, ऐसी रिएक्शन जो कंप्लीट होने में कुछ ही मोमेंट लेती है, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. These reaction are very fast, and the example of such reaction are the ionic compound when dissolved in their aqueous solution. Ionic compounds when dissolved in aqueous solution are the example of the instantaneous reaction. So, for example, AgNO3 plus NaCl aqueous. It gives rise silver chloride plus sodium nitrate. This is white PPT. तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है विद इन मोमेंट बन जाता है. डालते ही जैसे हम टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, ऊपर से क्या डालेंगे? सोडियम क्लोराइड डालेंगे, तो व्हाइट पीपीटी जो है एट वंस इमीडिएटली जो है बन जाएगा. तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. नाउ सेकंड रिएक्शन इज slow reaction. Before slow reaction, one point is important to note. Instantaneous reaction are so fast that their rate cannot be studied. इंस्टेंटेनियस रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि उनका रेट जो होता है, उनका रेट जो है स्टडी नहीं कर पाते हैं. स्लो रिएक्शन a reaction which take long time to be complete. ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा टाइम लेती है कंप्लीट होने में, लॉन्ग टाइम. वो लॉन्ग टाइम क्या हो सकता है? लॉन्ग टाइम में बी फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, ईयर्स, मंथ. तो जो स्लो रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, वो टाइम क्या हो सकता है? आवर्स भी हो सकते हैं, डेज भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं और ईयर्स भी हो सकते हैं. तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शन कहते हैं. इसके एग्जांपल ले लेते बेटे. फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन ऑफ sugar in presence of yeast. Rusting of iron, setting of cement, formation of coal and petroleum, etc. So these are the examples of slow reaction.
कौन कौन से बेटे? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के द्वारा बेटे एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल, जिसको आप क्या कहते हो? वाइन भी कहते हो। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है बेटे। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोल, कोयला पेट्रोल बनने में जो है लाखों साल लग जाते हैं बेटे। ठीक है, तो ये ज्यादा स्लो रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी स्टडीड। नाउ थर्ड, केमिकल रिएक्शन नंबर थर्ड है नंबर थर्ड chemical reaction proceeding at intermediate rate। ये रिएक्शन न तो स्लो होती है और न ही ज्यादा फास्ट होती है, इसलिए इन रिएक्शन को कहां लिखा जाता है? केमिकल रिएक्शन प्रोसीडिंग एट इंटरमीडिएट रेट। तो इनका हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखो बेटे, और एग्जाम्पल है इसका नंबर 1, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसका डिकम्पोजिशन करो बेटे, 2H2O प्लस O2। नंबर 2, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया प्लस H2O, तो क्या बन गया बेटे? 4NO प्लस 6H2O। देखिए बेटे, बैलेंस देखो तो कैसे गलत हो रही है बैलेंस बेटे। 4NO हो गया बेटे प्लस 6H2O, नहीं, दिस इज रॉन्ग बेटे, 5O2 बेटे। तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया और NH3 प्लस 5O2, तो क्या बन गया? नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया प्लस वाटर बन गया। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, एस्टरिफिकेशन, CH3 COOH प्लस C2H5OH in presence of acid। तो CH3 COC2H5 प्लस H2। ये जो रिएक्शन है ये भी जो है इंटरमीडिएट रेट पर जो है अक्कर होती है। ये जो रिएक्शन है, जितनी मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ये सब इंटरमीडिएट रेट पर जो है अक्कर होती है। दीज रिएक्शन आर नाइदर फास्ट रिएक्शन नॉर स्लो रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हो आप, बहुत एग्जांपल है बेटे। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ द केन शुगर, C12 H22O11, this is the cane sugar, the name of this sucrose plus H2O, and it gives rise to C6H12O6 plus C6H12O6. This is glucose, this is fructose. The molecular formula of glucose and fructose are same, but their structural formula are different. So these are the example of the chemical reaction proceeding at intermediate rate. Next topic is reaction rate. Reaction rate, changing molar concentration
concentration of species taking part in chemical reaction per unit time. Change in molar concentration of species taking part in chemical reaction per unit time is called reaction rate. इसको हम क्या कहते हैं बेटे? रिएक्शन रेट कहते हैं. तो रिएक्शन रेट is equal to change in concentration upon time taken. Let us take an example of an equation like this: A to B. Now, rate of reaction rate. इसका जो रिएक्शन रेट होगा वो बेटे कैसे होगा देखिएगा, होगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी. देखिए बेटे इसको समझने की कोशिश करिएगा. एक रिएक्शन है बेटे, दिस इज रिएक्टेंट एंड इट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट बी. इसका रिएक्शन रेट कैसे लिखेंगे? रिएक्शन रेट बराबर, अब जो रिएक्टेंट है उसके आगे मैंने बेटे माइनस का चिन्ह लगाया है, जबकि प्रोडक्ट के आगे जो है प्लस, जो मैंने दिखानी है प्रोडक्ट का चिन्ह लगाते हैं. तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्यों लगाते हैं और यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्यों होता है? क्योंकि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस समय जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होती है, व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होती है. जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है उसके आगे जो है माइनस जो है इंडिकेट करते हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होती है उसके आगे प्लस का चिन्ह दिखाते हैं. तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया बेटे यहाँ पर. ठीक है, ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स को क्या कहते हैं यहाँ पर? कंसंट्रेशन. माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर भी है डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, अब इसके साथ एक दूसरी वो लेते हैं बेटे, दूसरी रिएक्शन लेते हैं. ए प्लस बी इट गिव राइज टू सी प्लस डी. तो इसका रिएक्शन रेट क्या होगा? रिएक्शन रेट बराबर होगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, अब देखिए बेटे रिएक्टेंट के आगे मैंने माइनस का मार्क लगाया, माइनस का साइन लगाया. ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, इसके आगे मैंने माइनस का जो है साइन लगाया, परंतु प्रोडक्ट के आगे मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया. उसके पीछे रीजन क्या होता है बेटे कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होती है, इसलिए इनका आगे माइनस का चिन्ह लगाते हैं. तो ये रिएक्शन रेट है. अगर मैं इसको अलग अलग इसको दे लिखूं बेटे, है रिएक्शन रेट इन टर्म ऑफ ए या इन रेस्पेक्ट ऑफ ए, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए.
इन रेस्पेक्ट ऑफ, कैसे लिखेंगे बेटे? तो ए वाली का लिख देंगे बेटे, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। रिएक्शन रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ बी माइनस डेल्टा concentration of B upon delta T. Reaction rate in respect of C delta concentration of C upon delta T. ठीक है, रिएक्शन रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ D, तो क्या होगा बेटे? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा T। तो रिएक्शन रेट कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया बेटे। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ बेटे, एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ जिसका मुझे है रिएक्शन रेट लिखेंगे। Let us take an example. N2 plus 3H2 it give rise to 2NH3. रिएक्शन रेट, तो रिएक्शन रेट कैसे लिखेंगे बेटे इसका? पहले रिएक्टेंट का लिखते हैं, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेल्टा टी बराबर। अब आ गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं बेटे? ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं सामने बेटे, इसको जो क्या लिखते हैं हम? 1/3 या 1 जो भी है, अगर 2 होगा तो 1/2, 4 होगा तो 1/4, 5 होगा तो 1/5, ठीक है। तो यहाँ ये 3 है, इसको क्या लिखेंगे? 1/3 माइनस 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। तो इस रिएक्शन का रिएक्शन रेट कैसे लिखा जाएगा? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटे। नेक्स्ट एग्जांपल, 4P प्लस 5O2, तो क्या बन गया? 2P2O5। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन रहा है, तो इसका रिएक्शन रेट कैसे लिखेंगे? लेट अस राइट रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट कैसे लिखेंगे बेटे? ये 4 है तो उसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये रिएक्टेंट है फास्फोरस, यहाँ ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, तो उसके आगे जो है माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस पहले 4 को क्या लिखेंगे? 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस अपॉन डेल्टा टी, फिर इक्वल टू माइनस 1/5 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा concentration of P2O5 upon delta T. So in this way we can write the reaction rate of any reaction. Those reactions should be intermediate, proceeding at intermediate rate. Okay. Now next topic है इसके अंदर बेटे एवरेज रेट रिएक्शन। एवरेज रिएक्शन रेट देखिएगा, एवरेज रिएक्शन रेट changing in molar concentration change in molar concentration of species per unit time of species per unit time
is called average reaction rate of the species is called average reaction rate. क्या कहा जाता है बेटा? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज कौन से बेटे? दोज स्पीसीज विच आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज रिएक्शन रेट. फॉर एग्जांपल, if x1 is the concentration of A at time t1, at time t1, x2 is concentration of A at time t1. Now, change in concentration. Change in concentration is equal to x2 minus x1. Change in time is equal to t2 minus t1. Now, reaction rate, average reaction rate. Average reaction rate क्या होगा बेटे? Change in concentration, change in concentration upon time taken बराबर. तो यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन क्या बेटे? x2 माइनस x1, टाइम क्या हुआ? t2 माइनस t1, देन डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. दिस इज एवरेज रिएक्शन रेट. एवरेज रिएक्शन रेट. तो एवरेज रिएक्शन रेट को हम कैसे लिखते हैं ये देखिए बेटे आपने. एवरेज रिएक्शन रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. तो यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन कितना था? x2 माइनस x1 और टाइम कितना था? t2 माइनस t1. तो एवरेज रिएक्शन रेट कितना हुआ? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. लिमिटेशन ऑफ एवरेज रिएक्शन रेट. लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ एवरेज रिएक्शन रेट. देखिए बेटे क्या लिमिटेशन है इसकी? एवरेज रिएक्शन रेट की क्या लिमिटेशन है? इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जो रियल रेट होता है रिएक्शन का, इसके द्वारा नहीं स्टडी की जा सकती. इट डज नॉट टेल अबाउट द ट्रू रिएक्शन रेट. इट does not tell about true rate of reaction because change in molar concentration of a particular species for two
same gap of time interval is not same. तो अभी हमने बेटे डिस्कस किया था कि एवरेज रिएक्शन रेट क्या होता है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज अपॉन टाइम टेकन। ये जो एवरेज रिएक्शन रेट है ये ट्रू रेट के बारे में नहीं बताता है, यह इसकी लिमिटेशन है। इसको क्यों नहीं बताता है? क्योंकि ये देखो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बेटे, बिकॉज change in molar concentration of a particular species for two same gap of time interval is not same। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेट अस ड्रा द ग्राफ बिटवीन टाइम टेकन और यहां पर है बेटे मोलर concentration that is delta x, यहां पर है जी डेल्टा t। ठीक है जी, इसको हम कैसे लिखते हैं? सपोज करो एट टाइम t1, ये टाइम t1, ठीक है जी। तो जो एट टाइम t1 है, जो कंसंट्रेशन है वो है x1, और एट टाइम t2 वो कंसंट्रेशन है x2। देखिए ये मैंने ग्राफ ड्रा किया है मोलर कंसंट्रेशन में और टाइम के बीच में। एट टाइम t1 the molar concentration of a species is x1 and at time t2 the molar concentration of the reacting species is x2। now average reaction rate, average reaction rate बराबर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। समझने की कोशिश करें बेटे, ग्राफिकली मैंने इसको जैसे समझाया है बेटे यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज एवरेज रिएक्शन रेट। नाउ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट,